Hello everybody. Today we are going to start a very important topic of matrix algebra. It is the last topic of our chapter and this topic is application of matrix algebra in solving simultaneous linear equation. This is a very important topic because one question is definitely asked on this topic in 6 marks category. So we have already solved the simultaneous linear equations in class 10th in two variables, and here we will be solving the simultaneous linear equation in two and three variables by using matrix algebra, right? Okay, now student, let us now consider the following system of n linear equations in n unknowns x1, x2, x3 and so on till xn. You can see that the first equation is a11 x1 plus a12 x2 plus so on till a1n xn equal to b1. Like that you can see that the second, and then you can see there are n number of equations which are written. Now these equations can be expressed in the form of a matrix A into x is equal to b, where the matrix A is consisting of the coefficient of the variables. You can see that the a11 a11 a21 column number 1, you can see that a11 a21 so on till an1 is the coefficient of x1 of all the given equations, and similarly second column consists of the coefficient of x2 and so on. So a matrix consisting of the coefficient of the variable x1 x2 like that. Then the matrix x consisting of a column matrix consisting of the variables only x1 x2 till xn, and in the right hand side part the matrix B consists of the constant b1 b2 and so on, which is equal to till bn. So here the main purpose is that all the linear equation, simultaneous linear equation, can be converted in the matrix equation Ax is equal to b. Okay, now after getting the matrix equation as Ax is equal to b, what we will do, we will multiply both the side by A inverse. So pre-multiplying both the side by A inverse, so we will be getting what, A inverse into B. A inverse into A will become identity matrix into X, which is equal to A inverse into B, and identity matrix into X will be equal to what, the matrix X only. So X will be equal to A inverse into B. So like this we will obtain the matrix X, and matrix X consists of the variable matrix. So this way we will get the values of variable. But here we have to take care of, note that ki A should be, A is non singular matrix, that is determinant of A should not be equal to 0. तो ये अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे, उस केस के अंदर ये x की वैल्यू यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा. देयरफॉर सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन. देयरफॉर सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन. तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं होना चाहिए, तब अपन ही कर पाएंगे. ओके, अब अपन ये पढ़ लेते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent if it has at least one solution. ठीक है, otherwise system is inconsistent. That is,
नो सोल्यूशन। तो अगर इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो इफ नो सोल्यूशन दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। Now let us see the criterion for consistency. What we do? First of all, we convert the given system of linear equation in the matrix equation Ax is equal to B. Right? Then after this, we find the determinant of A. Why we want to find the determinant of A? Just to check whether this is a singular matrix or non-singular matrix. And if determinant of A is not equal to 0, that means non-singular matrix, then we have already discussed the system is consistent and has unique solution given by x is equal to A inverse into B. But in the second case, if determinant of A is 0, then we find the adjoint of A into B. We find the product of these two matrices. Now the possibility of this product is, in the first case, if adjoint of A into B is a null matrix, this is O not 0 है ना, तो this is null matrix. अगर इसका प्रोडक्ट अगर null matrix आ जाए, then the system is said to be consistent. This is consistent and has infinite many solution. Infinite many solution मतलब उसका एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे उसमें। ठीक है, बट इफ द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट ए नल मैट्रिक्स देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. So like this we will be able to just find out whether the system of the given equation is consistent or not. Okay, now we will take one question to understand this matrix method. The question will come like this: you will use matrix method to solve the following system of equation. Here we have taken the two linear equation in two variables, right? So first of all we will convert this equation in matrix equation. So converting it into matrix equation Ax is equal to B form. कैसे बनेगा इसको? A में क्या बनेगा? 5 7 x के कोफिशिएंट -7 -5 y का कोफिशिएंट, फिर इनटू x एंड y वेरिएबल का मैट्रिक्स, फिर इक्वल टू आ गया, और फिर b मतलब कांस्टेंट का मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे ये a है, ये x है और ये b है ये। तो अब हमको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। अब a इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना आता ही है। 5 इंटू -5 कितना हो जाएगा? -25, और ये माइनस आया तो +49, तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 24, एंड 24 तो 0 होता नहीं है। तो देयरफॉर गिवन सिस्टम हैज, अपने को क्या पता पड़ गया? तो गिवन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। यहाँ से हमको ये पता पड़ जाएगा। अब ये ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स कैसे आएगा? नाउ वी नो दैट ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैंने आपको बताया था 2/2 में एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे बताया था आपको एडजॉइंट निकालना? अगर जैसे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, इसका मतलब 24 आ रहा है डिटर्मिनेंट, इसको अपन 1/24 से मल्टीप्लाई कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए जो मैंने बताया था उसमें क्या बताया था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको अपन इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको इंटरचेंज कर दिया तो डायगोनल मैट्रिक्स 5 की जगह -5 आ जाएगा, और -5 की जगह +5 आ जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा -5 और इधर आ जाएगा +5, और जो दूसरा जो नॉन डायगोनल वाला जो एलिमेंट है उसके खाली साइन बदलना है। तो यानी यहाँ पे 7 और ये, तो ये +7 बन जाएगा और ये वाला -7 बन जाएगा। तो ये मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी पहले ही, और मैंने ये भी बताया था ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है। तो ये बन जाएगा अपने पास ए इनवर्स। अब अपन यहाँ पे आ जाएंगे, 9 x जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी,
ए इनवर्स में हमने ये निकाल ही लिया 1/24, और ये -5 7 -7 5, ये इसको मल्टीप्लाई करना है बी वाला मैट्रिक्स। तो बी वाला मैट्रिक्स क्या था अपने पास 2, ये कॉलम मैट्रिक्स है ना 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का आप लोगों को पहले से ही आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -5 × 2 -10, 7 3 जा 21। सेकेंड वाला जब रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो तो -7 × 2 -14 और +5 × 3 15। तो ये मिला करके कितना बन जाएगा, तो दिस विल बी 1/24 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली ये अपने पास ये हो जाएगा। इसको अपन चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं 11/24, 1/24 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/24। और ये x जो था वो कौन सा मैट्रिक्स था, ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स था। तो अब दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 11/24 और y की वैल्यू 1/24। तो इस तरह अपने पास ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इस तरह अपने को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं। अब जो इक्वेशन ले रहे हैं वो 3 वेरिएबल में ले रहे हैं, तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 है x + 2y + z = 7, x + 3z = 11 सेकेंड इक्वेशन, एंड 2x - 3y = 1 थर्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेसिंग इट इनटू द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो पहले फर्स्ट कॉलम में मैंने बताया था x का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो आप देख लो पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में 2 है। सेकंड कॉलम जो होगा वो y का कोफिशिएंट होगा। तो पहले वाले में y का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड वाले इक्वेशन में y वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, और थर्ड वाले केस में -3 है। थर्ड कॉलम जो होगा z का कोफिशिएंट होगा, तो ये पहले वाले केस में 1 है, दूसरे वाले केस में 3 है, और तीसरे वाले केस में 0 है। तो ये अपने पास आ गया मैट्रिक्स ए। फिर इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स, तो 3 वेरिएबल है x, y और z, ये हमने x वाला मैट्रिक्स ले लिया, और इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में 7 11 और 1। तो अपने पास क्या आ गया, ये a, ये x, और ये इक्वल टू, और ये b आ गया। तब आपको प्रोसेस तो पता है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ये a का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आएगा वो आएगा क्या, सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंशन करेंगे। आप कहीं से भी एक्सपेंशन कर सकते हो इसको। तो मैं सपोज लाइन से चलते हैं, 1 × ये वाला रिजल्ट 0 माइनस और माइनस +9 हो जाएगा। फिर -2 × ये कॉलम डिलीट किया तो ये 0 -6 हो जाएगा, +1 × ये रो कॉलम डिलीट हो गया तो -3 और ये -0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, ये -2 -6 मल्टीप्लाई होगा तो +12, और ये हो जाएगा -3। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये 9 हो, 9 और 9 18 हो जाएगा। तो अपने पास ये जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये 18 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 तो है नहीं। इसका मतलब ये अपने को यहाँ पता पड़ गया कि सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अपने को यहाँ से तो ये पता पड़ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको पहले से ही आता है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। अब कोफैक्टर ऑफ ए आपको निकालना आना चाहिए, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये आपको निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स आएगा। तो पहले वाले में तो देखो, ये रो वाले में जैसे फर्स्ट अगर एलिमेंट है 1 का, तो ये फर्स्ट में वैसे जैसे भी आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया था, तो उसी तरह ये वाला आ जाएगा 9 पहला वाला। दूसरे वाले में आपके पास ये आ रहा था -6 आ रहा था, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6, और तीसरे वाले में आ रहा है -3। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो का तो बता दिया कैसे निकाला। अब सेकंड और थर्ड रो भी इसी तरह आप निकाल लोगे कोफैक्टर का। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है।
ट्रांसपोज करने में क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ मैं, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, आपको पता है रो को कॉलम बनाया तो 9 6 -3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, -3 -2 7, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा 6 -2 और ये -2, ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नाउ ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा था 18, तो इसका मतलब 1/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट को। एडजॉइंट हम पहले से निकाल चुके हैं, 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2। तो x जो होता है वो a इनवर्स इंटू बी होता है, इसका मतलब मुझे a इनवर्स 1/18 है, 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, बी वाला मैट्रिक्स जो था वो कॉलम मैट्रिक्स 7 11 और 1 था, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करना चालू करें 1/18 बाहर, तो 9 रो इंटू कॉलम होता है, 9 × 7 9 7 जा 63 -33 प्लस 6 पहला रो आ जाएगा, 7 जा कितना होता है 42 -22 -2, तीसरा वाला आ जाएगा -21 प्लस 77 -2, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/18 टाइम्स, पहला वाला क्या हो जाएगा 63 में से 33 गया तो कितना हो गया 30 30 प्लस 6 36 हो जाएगा। दूसरा वाला 42 -22 20 20 -2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। इस वाले में -21 और -2 -23 -23 इसमें 77 में ऐड करेंगे या 77 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 में से ये गया तो 5, तो ये बन गया, जिसको हम x क्या लिख सकते हैं, x जो बन जाएगा जो ये बन जाएगा, इसको 13/18 1/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली यानी पहला वाला जो एलिमेंट है वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 2, दूसरा एलिमेंट जो है वो y की वैल्यू है और तीसरा जो एलिमेंट है वो z की वैल्यू है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगर इसको आपको जस्टिफाई करना है कि सोल्यूशन सही है कि नहीं है, तो आप जो गिवन इक्वेशन थी ना 3 इक्वेशन, उनमें से किसी में भी आप रख करके चेक कर लो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इससे कंफर्म भी हो जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।